When you have a look at this beautiful mango, what do you feel? It's juicy and it's nice and it's luscious and it's ripe. Now have a look at this prune. It's a dried up bichara sa prune. It's a raisin, right? Now imagine, what do you want your life to feel like? Do you want it to feel full and luscious and, beautiful? How do you want to feel in your body? Or, I don't even have to go there. How do you perceive your life feeling if it felt like a dried up prune? And unfortunately, this is how a lot of our lives are feeling right now. And ये जो process होता है ना juiciness increase करने का in mind, body and spirit, उसको आयुर्वेद में रसायन बोलते हैं. Robert Svoboda in fact calls it the art of juicing up. An increased rust in your body. Physically वो कैसे दिखता है? Physically वो दिखता है कि आपकी skin बहुत अच्छी हो जाती है. You have really nice hair, you have a slim waist, you have lots of energy. You basically look a lot like this. When there is lack of juice in the system, that shows up in the immunity, that shows up in life force. So physically you feel dried up and mentally rust जब आपकी body में बन जाता है तो क्या होता है? Mental clarity आ जाती है. There is a lot more enthusiasm, there's a lot more joy. You're smiling again for no reason. There is contentment, वो तृप्ति जिसकी बात करते हैं ना, and you feel more loving towards other people. You feel more compassionate towards yourself. You feel more lovable. There is more love inside of you to give. You're more receiving when it comes to the love outside, and those are the things that happen when you increase this rus or this juiciness factor in your life. इस juiciness factor को आयुर्वेद में ओजस भी बोला गया है और ओजस के बारे में हम काफी detailed discussions करेंगे on how to increase this ojas in your life in our videos that are going to be coming on. So subscribe if you haven't already. And आज हम एक ऐसी daily habit के बारे में बात करेंगे जो अगर आपने dial down कर ली, the rest of your life will be a lot closer to a walk in the park. So let's get started. Early light dinners करना, ये एक चीज है जिस पे मुझे सबसे ज्यादा pushback मिलता है when I've spoken about it and how to wake up at 5 AM easily. सबसे ज्यादा pushback ना इसी चीज पे आता है कि यार डिनर कैसे जल्दी कर लो, and उसके ना कर पाने के बहुत सारे valid reasons होते हैं जिसके बारे में भी आज हम बात करेंगे. लेकिन सबसे पहले let me tell you about this one book that really kind of highlighted this one point for me. This book is called The Body Thrive. It's by Kate Stillman, and I would highly recommend it for anyone who is on a health journey trying to become a better version of themselves. She basically lists down these 10 habits that you can incorporate today so that you're completely transformed individual, and कोई ज़्यादा will power भी नहीं लगती है इसमें because it's a very one by one step. And the first habit, surprise surprise, is eating an early light dinner. So let me tell you a little bit more about what she says in the book. She says कि basically ना early light dinner करने में सबसे ज्यादा जो हमें बाधा आती है हमारे आगे वो ये है कि डिनर का जो सोशल एक कॉन्स्ट्रक्ट है ना, वो सारे साथ बैठ के जितने भी बजे खाएंगे, अब वो 8, 9, 10 बजे, because that is the family chill time. But if you actually look at the medical sort of reflection of it, this habit is not reflecting very well as far as our physical and mental health is concerned. Because पहले क्या होता था, सारे अगर 5, 6, 7 बजे साथ बैठ के डिनर कर लेते थे, then it's a win-win for everybody. But आजकल everyone is getting back home later, and to kind of try and have the same culture go forward is actually a little foolhardy, because इसका मतलब है आप टाइम के साथ अडेप्ट नहीं कर रहे हो और आपकी बॉडी आपको कल नहीं तो परसों ये चीज बता ही देगी. अर्ली डिनर ना करने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. या तो इट कैन बी कि यार मैं ही ऑफिस से इतने बजे घर आती हूँ एंड आई एम द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कुकिंग, सो जब तक डिनर बनता है टाइम हो जाता है, एंड देन द किड्स कम एंड माय स्पाउस कम्स एंड वी ऑल सिट एंड ईट. या फिर somebody else is responsible for the cooking in my house, and वो जब तक खाना बनाते हैं तब तक एक certain time हो जाता है. तो ये 2 scenarios हो सकते हैं. केट स्टिलमैन ने अपनी बुक में A Woman Called Ginger, उसका जिंजर का एग्जाम्पल लिया, एंड उसने जिंजर को पूछा चल एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, बिकॉज जिंजर सेड कि मैं 5 बजे मुझे भूख लग रही होती है लेकिन मैं खाना खा नहीं सकती बिकॉज जब तक मैं डिनर विनर बनाती हूँ एंड द किड्स कम एंड एवरीथिंग, टाइम हो जाता है, मुझे खाते खाते हो ही जाता है 8, 9 तो कहीं नहीं गए, वो तो बच जाता है. सो केट स्टिलमैन एक्चुअली टोल्ड जिंजर कि ठीक है एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. सोचो कि तुम्हारी लाइफ में कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ओके. सोचो कि नो बच्चे, स्पाउस, कोई और बना रहा है फलाना, अगर तुम्हारे ऊपर होता, हाउ डू यू वांट योर इवनिंग, तुम क्या विजुअलाइज करते हो, तुम कब खा लेते, क्या खा लेते. सो शी सेड कि मैं तो 5 बजे आती हूँ, इफ आई ईट अ लिटिल समथिंग देन तो आई फील ऑल सेट, बट उस टाइम पे भूख लगती है. तो
कहती ठीक है, तो तुम्हें 5 बजे भूख लग जाती है, तो व्हाट वुड यू आइडियली डू? शी इज लाइक, मैं आती, मैं मेडिटेट करती, मैं अपना कुछ सिंपल सा बना के खा लेती और मैं फ्री हो जाती, एंड देन आई वुड हैव बीन एबल टू सपोर्ट एवरीवन मच बेटर इन अ मच बेटर कैपेसिटी। तो कहती ठीक है, हफ्ते के लिए ट्राई कर ले, यू नो, जस्ट ट्राई दिस एंड सी हाउ दिस वर्क्स फॉर यू। सो जिंजर वुड कम बैक फ्रॉम हर ऑफिस, शी वुड मेडिटेट फॉर अबाउट 2 to 3 minutes एंड फिर वो अपना कुछ सिंपल सा जो 10 मिनट में बन जाता है। बाय द वे ऐसी बहुत सारी रेसिपीज हैं जो 10 मिनट में बन जाती हैं अगर आपने थोड़ी सी मील प्रेप करके रखी हुई है पहले। वील टॉक अबाउट अ कपल ऑफ ऑप्शंस गोइंग फॉरवर्ड। शी ट्राइड इट एंड शी ट्राइड इट फॉर अ व्हाइल एंड इट वर्कड लाइक अ charm. Then the next step was to talk to the family and say that, you know, I will be having dinner a little earlier. After a week, a couple of weeks, she had another check-in with her coach and they spoke and she said कि अभी भी कोई weirdness है? She's like, no, there's no weirdness. पहले एक हफ्ते थोड़ा weird लग रहा था कि हाँ सब बैठे हैं, मैं अपनी चाय पी रही हूँ या मैं अपना दूध पी रही हूँ and you know everyone is having dinner, so that was slightly weird, but not anymore, you know, because people adapt and we have all adapted, and I think everyone is enjoying the fact that I am happier and I'm calmer because I'm not under the pressure to feed myself at the same time as trying to, you know, help them in have their dinner, you know, especially kids. तो ये थी जिंजर की story and you know this I just thought had to be shared from the book, and now let's come down to how we can incorporate it in our lives. पहली चीज तो let's assume कि आप अपनी किचन के लिए responsible हो और आप ही खाना बनाते हो. Then the best thing to do is that just after coming back from work, if meal prep is already done, make a little something, and अगर आपके पूरे डिनर में टाइम लगेगा तो भी आप अपने लिए एक छोटा सा कुछ, like पोहा is a great example. I know when I started having early dinner, मैं ऑफिस से आके सबसे पहले पोहा बना लेती थी, and वो पोहा खा के, you know, I was just done. I was so happy and I was so light. I had the evening all to myself. धीरे 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 करके of course my entire family came on to the same protocol, but it took a really long time. उस टाइम के लिए अगर आपको अपने लिए खाना बनाना है तो पोहा हो गया, या अगर साबूदाना आपने भिगो के रखा हुआ है तो you know साबूदाना is a great option. You can make उपमा. ये सारी चीजें ऐसी हैं जो 10-15 मिनट में बन जाती हैं और आप खा के फ्री हो सकते हो. Now let's assume that you are not the person who is responsible for cooking. Still, I mean, I'm assuming you have access to some sort of a kitchen. There is some way that you eat right now. A lot of people what they choose to do, इसके चाहे जो भी खाना बन रहा है बना रहे हैं, उनको प्रेशराइज किए बिना, उनका सिस्टम टच किए बिना, आप अपना सिस्टम थोड़ा सा वेरी कर सकते हो और आप अपने लिए जाके आप 5 बजे आउट ऑफ द 3 ऑप्शंस दैट आई मेंशन्ड, यू कैन मेक समथिंग फॉर योरसेल्फ. इससे क्या होता है कि फैमिली मेंबर जो खाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उन पे भी प्रेशर नहीं आता है कि यू नो आपने मेरी वजह से जल्दी खाना बनाना है. एट द सेम टाइम यू आर बीइंग रिस्पॉन्सिबल अबाउट द चॉइसेस दैट यू आर मेकिंग टुवर्ड्स योर बॉडी. इट विल रियली होल्ड यू इन गुड स्टीड. अब ये अर्ली डिनर के बेनिफिट्स क्या होंगे? नंबर 1 बेनिफिट, जब आप जल्दी खा लेंगे तो आप वेरी नेचुरली आप रियलाइज करेंगे जब तक आपके सोने का टाइम है विच इज 9:30-10 तक, जब आप सोना चाहते हो आप टायर्ड भी हो जाओगे और यू विल ऑल्सो बी इन अ पोजिशन वेयर यू विल बी एबल टू गो टू स्लीप ऑन अ लाइट स्टमक. हम बहुत बार खाना खा के जब इमीडिएटली सोते हैं वी डोंट हैव अ लाइट स्टमक एंड वो खाना ठीक से डाइजेस्ट भी नहीं हो पाता है, विच इज वाई यू नो इट्स अ कॉमन कंप्लेंट विच सेज कि हाँ मैं तो डिनर करके ही सो जाता हूँ, मैं डिनर करके ही सो जाती हूँ, फिर भी ना अच्छी तरह नींद नहीं आती है या सुबह तो मेरे से उठा ही नहीं जाता. सो इट इज नॉट यू, इट इज जस्ट योर सिस्टम ट्राइंग टू डाइजेस्ट ऑल दैट फूड. लेट मी टेल यू अ लिटिल बिट मोर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ अग्नि. आयुर्वेद में एक अग्नि का कॉन्सेप्ट होता है विच सेज के आपकी अग्नि जब हाई है, which is basically the digesting capacity in your stomach. If that is very high, then आपका खाना आराम से पच जाएगा, आपका खाना आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा. तो जब हम बार बार अर्ली डिनर की बात करते हैं और हम उस पर फोकस डालते हैं, वो इसलिए डालते हैं कि जब बाहर धूप होती है, जब बाहर सन होता है, तब आपकी बॉडी में भी वो अग्नि रहती है और जैसे जैसे starts getting dark outside, वो अग्नि भी आपकी मंद होने लग जाती है. Which means that rather than spending time on creating a very elaborate meal for the entire family and eating it जब आपके पास अग्नि ही नहीं है उसको डाइजेस्ट करने की, you are better off creating a very simple meal जिसको बनाने में it doesn't take longer than 10 to 15 minutes. अब that meal can be दाल चावल, that meal can be खिचड़ी, that meal can be a simple sabji with a roti. A lot of options are possible, but the first thing to really kind of align yourself is के simple is better for dinner. It is okay to not have like 1, 2, 3, 4 चीजें for dinner and then to go at it with everything you have
boycott. That was never supposed to be the concept of dinner. So I think that is a paradigm that we also need to shift in our own heads. If not for our entire family, at least for ourselves to begin with, that dinner needn't be big. The second paradigm is that it is okay to feed yourself first. And this is something that a lot of people struggle with, especially when they have responsibility to feed other people. They find that, they can either eat with others या फिर वो दूसरों के बाद में खा सकते हैं. And this is another paradigm that we need to relook at and say कि यार जब खाना बना दिया तुमने या किसी भी और ने, अगर आप 10 मिनट लगा के सबसे पहले खुद को फीड कर लेते हैं तो आपके पास जो हेल्प करने की दूसरों को कैपेसिटी है, आपके पास जो डिनर एनेबल करने की कैपेसिटी है, वो भी इंक्रीज हो जाती है. स्पेशली यू आर अ मदर और अ फादर एंड यू आर ट्राइंग टू फीड योर चिल्ड्रन एट द सेम टाइम. जब आप खाना खा रहे हो, एवरीवन नोज हाउ इरिटेटिंग दैट इज, ओके, बिकॉज you are getting probably annoyed at the kid for not eating properly, you're snapping at the kid and you are hungry, you're trying to feed yourself. Everyone, trust me, will be better off if you took 10 minutes and you ate first, चाहे आपके बच्चे हैं चाहे आपके बच्चे नहीं हैं. So this concept of के सबने साथ में ही बैठ के खाना खाना है या I can't eat first, that needs to go and look at it in a way that it will enable you to serve better. तीसरी चीज जो आती है वो है कि मैं अपने पूरे हाउस होल्ड का रूटीन नहीं चेंज कर सकता या रूटीन नहीं चेंज कर सकती. So the answer over here is that आपको पूरे हाउस होल्ड का रूटीन बिल्कुल टच नहीं करना है. The way to succeed in your sadhana, the way to succeed in your habits, secret to that is to not mess with other people's routines. Okay, they will automatically come on to the side that they feel is right for them. But in the beginning, it's very important कि आपकी जो personal practices है वो तभी बहुत जल्दी से गति पकड़ती हैं, वो स्पीड पकड़ती हैं जब आप बाकी लोगों की लाइफ में कुछ बदलाव नहीं मांगते हैं. एंड टू दैट इफेक्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ठीक है, इट्स ओके फॉर मी टू हैव सम फूड अर्ली. It's okay for me to have food that is different from what the rest of my family is eating, and both these things are okay. So I think if you are able to kind of start thinking of it that way and you get into that comfort, whether you're a man, you're a woman, you go to the kitchen and you're able to whip up like a quick 15 minute का something for yourself, I think आप उससे अपनी health के बारे में बहुत empowered feel करते हो. आप किसी पे dependent नहीं feel करते हो कि उसने क्या बनाया है, उसने कब बनाया है. तो ये सारी चीजों से dependency आपकी हट जाती है. एंड उसका सबसे ज्यादा बड़ा जो इम्पैक्ट है वो आपकी अपनी हेल्थ पे आता है, क्योंकि यू आर मेकिंग दैट चॉइस नाउ टू ईट अर्ली एंड देन यू ऑल्सो फील कॉन्फिडेंट इनफ टू मेक अदर चॉइसेस लाइक इट्स टाइम टू गो टू बेड. एंड बिलीव मी, ऑल ऑफ अस आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट पीपल. वी आर डिजाइन्ड इन अ वे दैट वी आर इवॉल्व्ड टू इम्प्रूव. तो आपकी फैमिली भी आपके प्रोटोकॉल पे सूनर रादर देन लेटर दे विल डेफिनेटली हॉप ऑन टू इट. द आइडिया इज नॉट टू फोर्स देम इनटू इट. अगेन, अग्नि के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एज अ लॉट ऑफ अस में ऑलरेडी नो, 90% जो हमारी व्याधियां होती हैं बॉडी में, हमारी जो डिजीजेस होती हैं, वो गट में से ओरिजिनेट करती हैं. आचार्य चरक एक्चुअली सेज कि अगर हमारी अग्नि जो है वो साम में है, अगर वो बैलेंस्ड है, तो हमें रोग हो ही नहीं सकते. लेकिन इफ द अग्नि ऑफ द पर्सन इज विशिएटेड, इफ द अग्नि इज इम्पैक्टेड, देन द पर्सन विल बिकम प्रोन टू हैविंग ऑल काइंड ऑफ इम्बैलेंसेस इन द बॉडी. सो अग्नि इज said to be the mool of life. So it's very, very important that we honor our Agni and we try and eat our biggest meal at lunch and then we try and eat a lighter meal at dinner so that हम इस अग्नि को honor कर रहे हैं. और जब ये अग्नि हमारे पास available नहीं है, then we go easy on the system and we don't load food onto our system. अब इसी ये अग्नि के ही पॉइंट पे आ जाता है कि जब भी हम कहते हैं कि अर्ली डिनर करो, we are also saying कि make sure your lunch is substantial, क्योंकि आपका डिनर लाइट है और जल्दी हो रहा है. तो लंच आप ट्राई करो कि ऑन द गो मत करो और थोड़ा सा हैवी लंच ट्राई करो कि करो. इसका भी रिलेशनशिप अग्नि के ही साथ है, बिकॉज लंच के टाइम पे जैसे धूप अपनी पूरी फ्लो में होती है, अपने पूरी इट्स शाइनिंग ब्राइट एंड नाइस एंड ब्राइट, तभी आपकी अग्नि भी नाइस एंड ब्राइट होती है. विच मीन्स कि जो भी चीट मील्स खाने हैं वो लंच में निपटा दो, डिनर तक मत लेके जाओ एंड योर सिस्टम विल थैंक यू फॉर इट. नाउ फॉर द लास्ट पार्ट, लेट्स टॉक अबाउट पीपल जो कि इधर कम्यूट कर रहे होते हैं इस टाइम पे या फिर जो ऑफिसेज में होते हैं और वो इस टाइम पे घर पे नहीं होते और वो खाना नहीं बना सकते या खा सकते. तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में रुजुता दिवेकर की जो बुक है which says don't lose your mind, lose your weight has some excellent options on food जो कि आप कैरी कर सकते हो, जो कि आप बना के ले जा सकते हो, जो कि आप बाहर से भी खरीद सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डिनर में आने में टाइम है, she says that you can have a vegetable sandwich outside, you can have poha outside, you can have anything that is generally a
healthier option. These are a few things that you can try, and I hope this video was helpful to you, and I will link a few more things that you can read below in case you're interested. So please take care and bye.